Guys, welcome to Arya Ke Deep Knowledge channel. This is the first video, and here we are taking some previous year question which are in various examination. So first question is, where is Bibi ka Maqbara is situated? The options are Agra, Nanded, Aurangabad, Delhi. Just pause the video for 2 seconds and answer the question. Hope so you may answer the right answer. Let's see. The right answer is Aurangabad. The Bibi Ka Maqbara is a prototype of Taj Mahal. It was built by Aurangzeb but not completed by him. It was completed by Azam Shah, the son of Aurangzeb. The Bibi Ka Maqbara was made in the memory of Aurangzeb's wife Dilraz Banu Begum urf Rabia Ud Durrani. Now next question. Who is the current Director General of World Trade Organization? Robert Azevedo, Ngozi Okonjo-Iweala, Henrietta Foro, Louis Gluck. The right answer is Ngozi Okonjo-Iweala. C. She belongs from Nigeria. She belongs from Nigeria. The capital of Nigeria is Abuja and currency is Niamey. Various MOU recently the MOU has been signed between India and Nigeria regarding space and space telecommunication and 111 and in science and technology. Now the next question is Mahavir and Lord Buddha belong to which Mahajanpads? The options are Magad, Vajji, Kuru, Avanti. Just pause the video for 2 seconds and answer the question. The right answer is Vajji. See, there was around 16 Mahajanpadas. 16. Around 600 BC to 300 BC ये महाजनपदास वगैरह इस्टेब्लिश थे। और जैसा कि इन मैप में आप देख सकते हैं, वज्जी का कैपिटल वाज वैशाली, मगध का राजगीर, अंगा का चंपा, उसी तरह अवंती का उज्जैन, कंबोज का तक्षशिला, सुरसेना का मथुरा. So there was around 16 Mahajanpadas and they all are republic. मतलब हेरिडिटरी नहीं था, किंग का बेटा किंग ही बनेगा ऐसा नहीं था. द पोस्ट ऑफ द किंग वाज द रिपब्लिक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? मिजोरम, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय. होप यू मे आंसर द क्वेश्चन. द आंसर इज Manipur. See, the Loktak Lake is situated in Manipur and there is one deer found, this Sangai deer. And there one festival also celebrated, Sangai festival, in the month of October, November. And here you are seeing the round green patches. ये ग्रीन ग्रीन पैचेस जो है उसको फुगड़ी बोलते हैं, फुगड़ी. और इसी फुगड़ी पे ये हिरन जो है सांगे डियर जंप करते रहते हैं इधर से उधर इधर से उधर. और ये फ्लोटिंग है. ये वर्ल्ड का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट से मतलब वन एंड ओनली लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है. इसमें फुगड़ी में ही पे ही घर, स्कूल्स वगैरह सारा मतलब मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, सब चीज़ यही लोकटक लेक के ये फुगड़ी जो एक ग्रास दिख रहा है ना, इसी पे सब चीज़ एस्टैब्लिश है. Okay, let's see some static regarding Mizoram, Manipur and Maharashtra, Meghalaya. मिजोरम का कैपिटल आइजवाल, मणिपुर का इम्फाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मेघालय का शिलोंग. द सीएम ऑफ मिजोरम इज पी जोरमथांगा, मणिपुर का एन बीरेन सिंह, महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे, मेघालय का एन कोनार्ड सागमा. ये मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, दिस three states falls in northeast. These are the parts of seven sisters. सेवन सिस्टर्स में सेवन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन कौन से हैं?
मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। दीज आर दी सेवन सिस्टर्स। और हम लोग सेवन सिस्टर्स प्लस वन भी कंसीडर करते हैं। वन इज अ सिक्किम। सिक्किम हमारा इंडिया में मतलब क्या बोलते हैं, इंक्लूड हुए 1975 में, अकॉर्डिंग 36 अमेंडमेंट। Who is the now next question? Who is the ex officio chairman of Niti Aayog? The options are president, prime minister, governor, CGI. Hope so you answer the question. The right answer is prime minister. प्राइम मिनिस्टर जो है ना, एक्स ऑफिसो चेयरमैन आपका नीति आयोग का होता है, स्पेस डिपार्टमेंट का होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का होता है। जोनल काउंसिल का नहीं होता है, जोनल काउंसिल का नहीं होता है। जोनल काउंसिल का होता है हमारे होम मिनिस्टर। और सीजीआई हमारा भी 46 सीजीआई हमारे यहाँ शरद अरविंद बोबडे, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। और सुप्रीम कोर्ट में कितना जजेस होते हैं? 33 प्लस वन, वन इज सीजीआई एंड 33 इज अदर जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज 65, हाई कोर्ट का 62 और सेशंस कोर्ट का 60। और व्हाट रिगार्डिंग, और ये हो गया अपना गवर्नर। गवर्नर जो होता है अकॉर्डिंग टू सेवेंथ अमेंडमेंट, गवर्न 1956, गवर्नर कैन बी पार्ट ऑफ टू स्टेट्स। मतलब एक गवर्नर दो स्टेट, टू और मोर स्टेट्स के भी रह सकते हैं। जैसे कि अभी आनंदीबेन पटेल, ही इज द करंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, बट द डेथ ऑफ द पास्ट गवर्नर लालजी टंडन, तो उनको भी इंचार्ज अभी दिया हुआ है आनंदीबेन पटेल को। सेम कंडीशन स्टार्ट्स विथ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का भी हमारा लेफ्टिनेंट जनरल है तमिल सलाई सौंदरराजन। शी इज अ गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तो ये सेवन्थ अमेंडमेंट में ये पा है कि गवर्नर दो स्टेट्स का भी हो सकता है। उसी तरह नहीं, उसी तरह नहीं, गवर्नर, हाँ गवर्नर, हाँ हाँ हाई कोर्ट, और ये हाई कोर्ट के जज को हम लोग अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट, बट विद द रिकमेंडेशन ऑफ सीजीआई एंड गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। प्रेसिडेंट का कहाँ कहाँ अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमीशन, कैग, और कैग को करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, सीजीआई। सीजीआई को रिकमेंडेशन करते हैं, सीजीआई को अपॉइंट करते हैं बाय द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ मिनिस्टर, करंट सीटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और और अपोजिशन को मिला करके ये अपना सीजीआई ये लोग डिसाइड करते हैं हु विल द नेक्स्ट सीजीआई। एंड सीनियरिटी भी देखा जाता है। एंड प्रेसिडेंट का एज 35, गवर्नर का मिनिमम एज 30, अब प्राइम मिनिस्टर का मिनिमम एज इज ऑल्सो 30। हाउ इफ, क्योंकि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर राज्यसभा सीट से है, राज्यसभा से है, तब तो उनका मिनिमम एज 30 होना चाहिए। अगर लोकसभा से है तब 25। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का जो हमारा मिनिमम एज है वो 30 है। गवर्नर के लिए भी 30, प्रेसिडेंट के लिए 35, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 30, और सीजीआई के लिए मैक्सिमम एज है 65। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ मिनट यार, हाँ, व्हाट हैपन, या नाउ, या, who invented penicillin? Penicillin was invented by whom? Options are Alexander Graham Bell, Robert Hooke, Alexander Fleming, Benjamin Franklin. Yeah, you may write. The right answer is Alexander Fleming. The right answer is Alexander Fleming. Alexander Fleming. Yeah, penicillin is extracted from fungus, and it is used as antibiotic.
मतलब फंगस से हम लोग निकाल के बैक्टीरिया को मार रहे हैं। फंगस के स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक डेड सेल, याद रखना, डेड सेल, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल, और एंटोनी वेन ल्यून हुक ने लिविंग सेल, लिविंग सेल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, और इन्होंने कंपनी भी खोला था, बी एंड टी, बेल, या बेल एंड बेल, जिनका अभी काफ़ी माइक्रो सेमीकंडक्टर चिप्स, ट्रांजिस्टर वगैरह मैन्युफैक्चर करता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Rabindranath Tagore gave up his knighthood because of the brutal suppression of civil disobedience movement, execution of Bhagat Singh, Jallianwala Bagh tragedy, or Chauri Chaura incident. Now, take the time and answer the question. Hope so you had answered the question. The right answer is Jallianwala Bagh tragedy. Now I will explain some here static points. बहुत यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चिल्लियनवाला बाग ट्रेजिडी, चिल्लियनवाला बाग ट्रेजिडी हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 ऑन द डेट ऑफ बैसाखी। जिलियनवाला बाग मैसेकर हुआ था। इसका रिस्पॉन्सिबल गवर्नर कौन था? जनरल ओ ड्वायर, DWYR, ये था गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ पंजाब। और जनरल ओ डायर, DYER, इसने फायरिंग करने का ऑर्डर दिया था, डायर। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन, लिटिल बिट कन्फ्यूजन रहता है। हाँ, और जलियांवाला बाग मतलब वहाँ हुआ क्या था कि बैसाखी के दिन पे सैफुद्दीन किचलू, और एक और, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इफ़ यू रिमेंबर द नेम, सैफुद्दीन किचलू एंड वन मोर शौकत, नहीं, एंड वन मोर, आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर नेम। उन दोनों का अरेस्ट हुआ था। उसी अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए एक सभा बुलाया गया था जलियांवाला बाग में। और वहाँ पे सिर्फ बैसाखी था, तो बहुत सारे मेला लगा हुआ था, तो बहुत सारे मेंबर्स आए थे। तो किसी ने वहीं पे बोल दिया कि यहाँ पे काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स और ये रिवॉल्यूशनरी के लोग का मीटिंग हो रहा है। तो डायरेक्ट आया और उसने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। अराउंड 1000 पीपल वेयर डेड इन दिस मसकर। ये ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल तो अराउंड 100 बोला जाता है, 21 से 23 इन ब्रिटिश पेपर, लेकिन अराउंड 1000 पीपल से डेड एट दैट मसकर। और एंड आफ्टर द मैसेकर, हाँ, ये हुआ क्यों था, इसके लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट मतलब नो दलील नो वकील, सीधे जेल पे। तो रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए ये मीटिंग, और रॉलेट एक्ट में था कि 4 से 5 आदमी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट वाज टुक प्लेस ऑन 1922, वेयर 22 पुलिस मैन को बर्न, जला दिया गया था जिंदा, एक पुलिस स्टेशन को, जिसमें कि 22 पुलिस मैन वेयर थे। और आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉड बाय गांधी जी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के साथ स्टार्ट हुआ था, जिसमें कहा गया था कि हम लोग कोई वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन 1922 में जो गोरखपुर में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, इस इंसिडेंट होने के कारण गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह का फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह को फांसी बिकॉज ऑफ लाहौर कॉन्स्पिरेसी, जस्ट बिकॉज ऑफ लाहौर कॉन्स्पिरेसी उनको दिया गया था। साथ में राजगुरु, सुखदेव और हमारे भगत सिंह, ये तीनों को फांसी दिया गया था लाहौर जेल में 23 मार्च, जिसे हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं, विच इज वी ऑल्सो सेलिब्रेट ऑन दैट डे एज अ मार्टर डे। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर का ये, he was the first Nobel Prize winner from Asia. In year 1913, he get Nobel Prize in Literature for the poem Gitanjali.
रविंद्रनाथ टैगोर को बार्ड ऑफ बंगाल, कवि गुरु, गुरुदेव, विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने बहुत सारा नोवेल पोएम का कलेक्शन है, गीतांजलि, हाँ गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इन्होंने गोरा नाम का भी एक नोवेल लिखा था। फिर इन्होंने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन एंड द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला, दोनों का स्क्रिप्ट राइट मतलब हाँ स्क्रिप्ट मतलब दोनों का स्क्रिप्ट लिरिक्स लिरिक्स इन्होंने ही लिखा था। और श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो भी इन्हीं से इंस्पायर्ड है, मतलब श्रीलंका का जिन्होंने नेशनल एंथम लिखा था वो भी शांति निकेतन में उन्होंने स्टडी किया था। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जिस तरह से इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एंथम एक आदमी ने लिखा था, उसी तरह उरुग्वे एंड पैराग्वे, दीज आर द टू कंट्रीज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, उसका भी नेशनल एंथम ना एक पर्सन ने लिखा था। इफ यू नो द नेम ऑफ दैट पर्सन प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड यस एंड हाँ एक 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 वेट 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 और तो है नहीं, हाँ थैंक्स। एक मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया था। हाँ, रॉबर्ट एजेवेडो, नोगोजी ओकोंजो इवेला, हेनरिटा फोरे, लुइस ग्लू, हु आर दिस फोर पर्सन? सो Robert Azevedo is from Brazil and he was the Director General of World Trade Organization before Ngozi Okonjo-Iweala। इनसे पहले रोबर्टो एजेवेडो हमारे डायरेक्टर जनरल थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। इसका प्रिकर्सर था गैट, GATT गैट। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। और इसके लिए मास्ट्रिच ट्रीटी साइन हुआ था। और इसको ब्रंटलैंड कमीशन के नाम से भी जानते हैं, जहाँ के ब्रंटलैंड कमीशन इज रिगार्डिंग फ्रॉम एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उरुग्वे राउंड, हाँ उरुग्वे टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस के नाम से भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, जो कि मीटिंग हुआ उसके बाद फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि दो दो या दो से अधिक कंट्री के बीच में जो ट्रेड हो रहा है ना, वो ट्रेड फेयर हो, कोई पार्शलिटी ना हो। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन के लिए हम लोग गवर्नमेंट अपने फार्मर को काफ़ी सब्सिडी, तो हमारा प्रोडक्शन डेफिनेटली ज़्यादा होगा। डेफिनेटली जब ज़्यादा होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में मेरा प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो डेफिनेटली बायर हमारे होंगे। तो ये एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। तो ये सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है देखने का। And the next option is Henrietta Fore. Henrietta Fore is a Director General of UNICEF. UNICEF stands for United Nations International Emergency Child Fund। और इसका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर हमारा पेरिस में है। यूनेस्को का नहीं, यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में, यूनेस्को का है पेरिस में। लुइस ग्लुक को इस बार का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया है। लुइस ग्लुक को इस बार नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और यूनेस्को यूनिसेफ हाँ यूनिसेफ ये यूनिसेफ की हैं। और यूनिसेफ हमारा फाउंड हुआ था 1946 में। यूनेस्को भी हमारा फाउंड हुआ था 1946 में। और यूनिसेफ का काम है चाइल्ड का एजुकेशन और उनका माल को देखना, मतलब एक तरह से चिल्ड्रन पे फोकस है। एंड मेनली इन अफ्रीकन नेशन। That's it. This was my first video, and I am very naive in making the video. Maybe there was, अगर कुछ error होगा तो you may write in comment box। और अगर मेरा ये effort अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तब like करना, अगर नहीं हुआ तो like मत करना। और अगर like जब कर दियो तब subscribe करना। Thank you।